all, welcome to my channel Green World Investor. I am Sneha and today we are going to talk about the different taxation implications of a women assessee in India. So if you are a woman citizen in India and you have income from any of the 5 sources of income that has been specified under the Income Tax Act of 1961, we will see how your income will get taxed at the different tax slab rates that we have, and if is there any deduction or exemption that you can claim from your overall taxation liability that stands at the end of any assessment year. Also, we will take a look if there are any special concessional rates for women, or how is the taxation of a woman assessee different from a male assessee in India. So we are going to see if all these provisions are applicable. I'm sure you will be with me till the end of the women video. So, hey women, do you know your taxes? So let's begin the video. So yes, according to the India Skills Report, around 53% of women accounted for the total formal and informal workforce in India in FY23. This increased from 29% in FY22 and from 21% in 23% in FY21, according to the World Bank's data. So you have seen a recent spike in the increase in the women workforce in 2023. So why is it so? So there are a couple of reasons why this has happened, because after the pandemic, it was seen that many families lost their sole working member. Women had to take up the charge, and they came forward, they came to the forefront and started they joined a formal or informal workforce in India, because they had to maintain their family, they had to maintain their children, they have to upbring their children, their education and everything. Also, after the pandemic, there has been a shift in the way the world works. पहले ऐसा देखा गया था कि there was strictly 9 to 5 corporate jobs in India. Specifically, there was no room for many part-time jobs. But after the pandemic, there has been increase in work from home jobs as well as part-time jobs, which has given a boost for women assessees, women folks in India to come forward and join the formal workforce. Also, as the times advance, technologies advance, and as there has been a change in the shift. Earlier, women were there was a choice for women to work or not to work, but now with changing times, things have changed and women want to come forward because they want to take charge. They have studied, they have built up a professional this thing career, so they do not want to stop for this heck of it. So many women folks have been encouraged by their thoughts, the families have been supportive, and this has become slowly the new norm of our new India. So hats off to all the women folk out there who are doing a splendid job managing their homes as well as work. So let's begin this video. In this video, we will take a look at the different slab rates that a women assessee is taxed at in India. So earlier there were concessional rates for women assessees. मतलब women assessee का जो tax rate होता था वो it was lower than the males in India. लेकिन FY 2013 में ये change हो गया और उसके बाद there has been a uniform tax slab rate for both male and female assessees in India. तो पहले अलग थे ये rates, लेकिन अब FY 13 से ये चेंज हो गया है. सो क्या हो गया है? तो for the purpose of clarification and for the purpose of better understanding, the income slab tax rates have been divided into 3 categories. तो सबसे पहले है women assessees lower than 60 years of age, women assessees of 60 to 80 years of age, and women assessees above 80 years. तो इन 3 broad categories में हमने assessees को divide किया. तो जो women assessees below 60 years of age हैं और अगर उनकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा. Yes, for a woman assessee who is below 60 years of age and having an annual income of less than 2.5 lakhs, their taxation is nil. For a woman assessee between 60 to 80 years of age and having an annual income of 3 lakhs, their tax rate is nil. And again, for women assessee who are 80 or more and having a annual income of 5 lakhs, their tax rates are nil. तो depending on the ages 60, 60 to 80 और 80 plus, अगर आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख से कम होती है तो आप पे कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती. अब देखते हैं अगर इन्हीं तीनों सिनेरियोज में इनकम्स हमारे बढ़ जाते हैं तो क्या होता है. ये हम बात कर रहे हैं ओल्ड टैक्स रिजीम की. जी हाँ, अभी लेटली एक न्यू टैक्स रिजीम भी इंट्रोड्यूस हुआ है, which we will take up later in the video. So in the old tax regime, अगर 2.5 लाख से 5 लाख, let's talk about 60 years वाला age bracket, तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख होती है तो आपको 5% टैक्स देना पड़ता है. अगर आपकी इनकम 5 से 10 लाख हो जाती है तो आपको 12,500 प्लस
20% ऑफ इनकम अबव 5 लाख जो होगा उस पे आपको वो टैक्स बनता है आपका। और अगर आपकी इनकम 10 लाख एंड अबव हो जाती है तो 1,12,500 प्लस 30% ऑफ टैक्स ऑन एनी इनकम ओवर एंड अबव 10 लाख बन जाता है। ये हो गया फर्स्ट। इसी तरह अब हम सेकंड में जाते हैं। तो 60 टू 80 इयर्स का जो ब्रैकेट है उसमें 3 लाख तक आपका इनकम एग्जेम्प्ट है। 3 से 5 लाख पर 5% लगेगा। 5 से 10 लाख तक 10,000 प्लस 20% ऑफ 5 लाख से जो भी ऊपर इनकम होता है वो हो जाएगी आपकी टैक्स लाइबिलिटी। और तीसरा, अगर 10 लाख एंड अबव होता है तो 1,10,000 प्लस 30% ऑफ इनकम अबव 10 लाख जो होता है वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन जाती है। अब हम देखते हैं 80 साल वाले महिलाओं के लिए क्या बनता है। तो इनमें 5 लाख तक एनुअल इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। 5 से 10 लाख होता है तो 20% बनता है। और अगर 10 लाख से ज्यादा आपकी इनकम है तो 1 लाख प्लस 30% ऑफ इनकम ओवर एंड अबव 10 लाख जो होगा वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन जाती है। तो आप देखिए कि जो ये टैक्स स्लैब्स हैं उसमें जो टैक्स का परसेंटेज है वो रिड्यूस होता जाता है एज द एज इंक्रीजेस। दैट इज वेरी नेचुरल, क्योंकि जब हम यंग हैं हमारी इनकम भी ज्यादा है हाथ में। फिर जब हम ओल्ड होते हैं, बिकॉज हमारे कंट्री में कोई सोशल सिक्योरिटी तो है नहीं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये थोड़ा एक कंसेशन दिया है कि जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपका टैक्स लाइबिलिटी मार्जिनली रिड्यूस होते जाता है। तो ये हो गया हमारा ओल्ड टैक्स रिजीम ऑफ टैक्सेशन। अब हम देखते हैं न्यू टैक्स रिजीम में क्या हुआ था। तो बजट 2020 में गवर्नमेंट ने एक न्यू टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस किया था जिसमें कंसेशनल रेट्स पे टैक्सेस लगते हैं। तो इस केस में क्या होता है, आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो कंसेशनल रेट्स पे लगेगा, लेकिन आपको जो डिफरेंट एग्जेम्पशंस और रिबेट्स मिलते हैं अंडर सेक्शन 80 वो आप एंटाइटल नहीं होंगे विद द एक्सेप्शन ऑफ 1 और 2। तो ये फर्क है इन दोनों में। तो अभी तक गवर्नमेंट ने ये छूट दी है अपने असेसीज को कि आप इन दोनों में अपने टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो, और जिसमें आपको बेनिफिट बेटर लगता है, आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम बनती है, आप उसमें यू कैन चूज दैट regime. Go ahead and file your income tax ITR as well as pay taxes thereon. तो इस तरह से इन्होंने एक न्यू टैक्स रिजीम लगाया था। तो इसमें क्या होता है, 2.5 लाख तक नील हो गया आपका इनकम। अगेन 2.5 से 5 लाख तक आपको 5% देना होगा ओवर 2.5 लाख। फिर 5 से 7.5 पे आपको 12,500 प्लस 10% ऑफ एनी इनकम ओवर 5 लाख देना होगा। अगेन 7.5 से 10 लाख तक 37,500 प्लस 15% ओवर 7.5 लाख जो इनकम है वो भरना होगा। 10 से 12.5 लाख होता है तो 75,000 प्लस 20% ओवर एंड अबव 10 लाख हो जाता है। और अगर 15 लाख से ज्यादा आपकी इनकम है तो 1.875 लाख प्लस 30% ऑफ एनी इनकम ओवर एंड अबव 15 लाख आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी बन जाती है। तो मैंने टेबल्स बनाए हैं आपके लिए, आप जरूर इसको देखिए टू नो द डिफरेंट टैक्स स्लैब रेट्स, बिकॉज इट इज important for everyone and especially for the women workforce who have joined the workforce or even they are working। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने इनकम अपनी कमा ली है और बाद में हम अपने सीएस को भेज देते हैं सब डेटा टू फाइल द आईटीआर। नाउ यू डोंट नो इफ they are doing a correct job, if सही उन्होंने कुछ नहीं मिस किया है, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी अगर आपको ये यू आर वेल वर्स्ड विद ऑल दीज टैक्स प्रोविजंस कि आपके टैक्स कितने पे लग रहे हैं, आप किस किस कंसेशनल्स किस किस कंसेशन को आप डिडक्शंस को आप एंटाइटल्ड हो। तो अगर वो भूल भी जाते हैं तो आप यू कैन पुट फोर्थ कि मैंने भाई वो इन्वेस्टमेंट की थी उसका डिडक्शन आपने नहीं लगाया, इससे मेरी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाती है। इट इज गुड टू नो द टैक्सेस बिकॉज अल्टीमेटली इट इज गोइंग आउट ऑफ योर पॉकेट एंड आउट ऑफ योर हार्ड अर्नड मनी। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू टेक चार्ज। अगर आप बाहर जाकर काम कर रहे हैं, घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, यू नो फील द पावर। आप इतना बढ़िया अगर काम कर रहे हैं तो फिर इधर आकर आप चूक मत करिए। सो आई विल अर्ज ऑल द वुमेन फोक टू वॉच दिस वीडियो, ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स की उनको भी इस बात पे ज्यादा जागरूकता हो कि आपके क्या क्या टैक्स लाइबिलिटीज हैं, क्या क्या बनते हैं। क्योंकि अगर एक तरफ आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स पता होंगे कि आप कहाँ कहाँ टैक्स सेव कर सकते हैं, सो इट विल बी गुड फॉर यू, इट विल गिव यू दैट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इट विल इंक्रीज योर परचेजिंग पावर, यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली, you can plan your investments accordingly. You do not have to rely on any other people or CAs also. आप अपना you can put forth your this thing and they will say if they agree or disagree. तो ये इसलिए important है to know your taxes. So let's continue. So after budget of 2020 ये जब new tax regime launch हुआ था, लेकिन अभी last year government ने इसको further polish किया है and they have further made some changes in the overall structure. तो अब क्या हो गया, now the government has increased the basic exemption limit, क्योंकि देखा गया कि ये जो ओल्ड न्यू टैक्स रिजीम ऑफ 2020 था, इट डिडंट गेट मच एक्सेप्टेंस एंड पीपल वर स्टिल
following the old tax regime because of the attractive 80 सेक्शन 80 का डिडक्शंस जो हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने फर्दर इसको पॉलिश किया है। तो अब जो बेसिक लिमिट है वो 2.5 लाख से 3 लाख कर दी गई है, और जो आप रिबेट आप वो पहले 5 लाख का लिमिट था, लेकिन अब वो 7 लाख तक, तो आप 7 लाख तक के इनकम पे आराम से आप रिबेट क्लेम कर सकते हो। तो अब हम ये जल्दी से इस टैक्स रेट को देख लेते हैं, टैक्स स्लैब का क्या है नए वाले में। तो आपकी अगर 3 लाख तक की इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, 3 से 6 लाख हो जाती है तो 5% देना होगा, 6 से 9 लाख पे 15,000 प्लस 10% ऑफ एनी इनकम अबव 6 लाख, 9 लाख से 12 लाख होते हैं तो 45,000 प्लस 15% ऑफ एनी इनकम अबव 9 लाख, फिर 12 से 15 होता है तो 90,000 प्लस 20% ऑफ एनी इनकम अबव 12 लाख, एंड 15 लाख अबव हो जाता है तो 1.5 लाख प्लस 30% ऑफ एनी इनकम अबव एंड ओवर 15 लाख। तो हाईएस्ट टैक्स स्लैब रेट अगर आप देखें तो इट कम्स टू 30%। तो ये हो गए हमारे डिफरेंट डिफरेंट टैक्स स्लैब रेट्स अंडर बोथ ओल्ड एंड न्यू। तो assessees are free to calculate their taxes and see which is more beneficial for them, and they can further file their ITR and pay the taxes regularly. I will urge all the women people, assessees who have income of more than 2.5 lakh or 3 lakh to go ahead and file their ITRs, क्योंकि सिर्फ सैलरी इनकम ही इनकम नहीं होती है फाइल्स में। सो वी कैन अर्न इनकम फ्रॉम 5 डिफरेंट सोर्सेज। तो पहला हो गया हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर आप प्रॉपर वर्क फोर्स में काम कर रहे हो जैसे तो आपका ये बनता है। सेकंड हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके नाम पे कोई घर है, आप किसी घर की ओनर हैं, तो आपने जो रेंट कमाया है वो आपके इनकम में आ जाएगा। तो अगर सालाना आपने 2.5 से 3 लाख तक ही कमाया तो वो एग्जेम्प्ट है, पर अगर वो रेंटल इनकम बढ़ जाती है तो उस पर आपको टैक्स देना होगा। तीसरा हमारा हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर आपने बेटिंग की है या कोई स्पोर्ट्स विन है या लॉटरी विन है तो आपको उस पर टैक्स भरना पड़ता है। वो अलग टैक्सेस टैक्सेशन स्लैब्स होते हैं, उसके अलग स्ट्रक्चर होता है। दैट इज अ टॉपिक फॉर अनदर डे। फोर्थ हमारा हो गया फ्रॉम कैपिटल गेन्स, यानी अगर आपने आपकी कोई प्रॉपर्टी आपने बेची है, आप स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स बेच रहे हो, गोल्ड बेच रहे हो, कुछ भी इस टाइप का अगर कैपिटल एसेट्स आपने बेचा है तो उस पे आपकी जो भी गेन होती है आपको कैपिटल गेन टैक्सेस देने होते हैं, विच कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे हेड्स हो गए इनकम के कि आप कैसे कैसे इनकम आप अक्रू होता है और आपको उस पर टैक्स देना पड़ता है। तो अगर आपकी इनकम ज्यादा है बेसिक लिमिट से तो जरूर आप अपना ITR फाइल करिए और एक responsible citizen baniye and do your thing by paying the correct amount of taxes. So now let's see what are the different types of tax exemptions, deductions that a woman assessee can claim. तो नंबर 1 है ATC। तो वी ऑल नो द बेनिफिट्स ऑफ ATC। ATC में देयर आर सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स दैट यू कैन मेक एंड विच इज अलाउड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें आपको टैक्स की बेनिफिट मिल सकती है। जैसे कि अगर आपने NSC में पैसे डाले हैं, PPF में पैसे डाले हैं, आप कोई LIP ले रहे हो, अपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हो, आप सुकन्या समृद्धि स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स है, इन सब में आपने इन्वेस्ट किया है तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 1.5 लाख तक का आप डिडक्शन ले सकते हो इस केस में। तो सुकन्या समृद्धि स्कीम एंड सीनियर सिटीजन स्कीम्स आर वेरी गुड स्मॉल सेविंग स्कीम्स, जिसपे मैंने डिटेल वीडियोस बनाए हैं। आप द लिंक आई हैव शेयर्ड हियर, तो आप जरूर ये वीडियोस देखें और आगे पसंद आए तो लाइक भी करें मेरे वीडियोस को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें अपने और फ्रेंड्स के संग। तो नेक्स्ट आफ्टर ATC कम्स ATCCC। इसमें क्या हो गया, अगर कोई भी स्पेसिफाइड पेंशन फंड है तो आप इसमें डाल सकते हैं। इट ऑल्सो कम्स अंडर द 1.5 लाख एग्जेम्पशन ब्रैकेट। नेक्स्ट इज ATCCD1। इसमें कोई भी नेशनल पेंशन स्कीम में आपने पैसे डाले हैं तो ये भी आपके एलिजिबल इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप इसमें टैक्स का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। देन कम्स ATCCD। अगर आपने एडिशनल और कोई डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं फॉर योर NPS कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज अप टू ₹50,000। देन कम्स ATD। तो ATD है, ATDD है, ATDD भी है। इसमें आप सब अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के जो आपने पेमेंट्स किए हैं वो क्लेम कर सकते हैं। सो इसमें अलग अलग सिस्टम होता है, 25,000 क्लेम कर सकते हैं या 50,000 क्लेम कर सकते हैं इफ यू आर अ सीनियर सिटीजन विमेन assessee, और ये आप खुद के लिए कर सकते हैं फॉर योर सेल्फ, फॉर योर स्पाउस, फॉर योर चिल्ड्रन और योर डिपेंडेंट पेरेंट्स और सिबलिंग्स ऑल्सो। तो इस पे आप क्लेम कर सकते हैं ये डिडक्शन। आगे होता है ATE। ATE में अगर आपने कोई इंटरेस्ट लिया है फॉर लोन फॉर हायर एजुकेशन, आई मीन आपने कोई लोन लिया है फॉर हायर एजुकेशन, तो जो आपने इस पे इंटरेस्ट दी है उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80E एंड द अमाउंट इज विल बी इक्विवेलेंट टू द इंटरेस्ट पेड। 80EEB में अगर आपने लोन लिया है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए तो इस पे आप 1.5 लाख तक का एग्जेम्पशन डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। दिस सेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एनकरेज द फास्टर EV adoption in India to save on climate change concerns। फिर आता है 80EEA। इसमें अगर आपने कोई लोन लिया है फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी, तो इसका आप क्लेम कर सकते हैं इस वाले सेक्शन में डिडक्शन। तो बाकी है TTA, जो आप सेविंग्स बैंक में आपने जो इंटरेस्ट कमाया है उस पर आप ले सकते हो अप टू ₹10,000। तो इसमें अलग देखिए, आपने देखा कि कुछ अलग नहीं है फॉर अ वुमेन एसएससी। पहले ये डिफरेंट था, स्लैब रेट्स, कंसेशनल रेट्स थे वुमेन के लिए, पर अब नहीं है। तो अभी जो ये बैंक्स हैं उन्होंने काफी लाइक एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक, एचडीएफसी, दे हैव कम अप विद डिफरेंट वुमेन बैंक सेविंग्स बैंक अकाउंट। तो आप ये देख सकते हैं इसमें कुछ वुमेन एसएससीज के लिए फायदे हैं। बाकी अगर आप एक सैलरीड वुमेन एम्प्लॉय हैं तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है विच इज इक्विवेलेंट टू 50,000 रुपीज पर मंथ पर ईयर। एंड ऑल्सो आपको HRA मिलेगा। अगर आप एक रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहे हो तो आपने जो रेंट पे किया है उसमें से आपको डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। आप अगर आप हॉलीडे ले रहे हो तो इन अ ब्लॉक ऑफ 4 इयर्स आप लीव ट्रैवल कंसेशन क्लेम कर सकते हो। तो ये सारे और एडवांटेजेस हैं फॉर अ सैलरीड वुमेन एम्प्लॉय। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी हमने देखा कि देयर आर नो डिफरेंट टैक्स स्लैब रेट्स फॉर अ वुमेन और अ मेल एम्प्लॉय, और होना भी नहीं चाहिए। जब हम वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन इक्वालिटी की इतनी बातें करते हैं तो व्हाई नॉट दिस वन? द टैक्सेस पेड बाय a woman assessee is equal to the taxes paid by a male assessee. But आप देखें तो in fact women end up paying more taxes on the products that we are using, like the cosmetic products or the vegan animal free products, or you know the hygienic products that we use. तो इसमें जो companies हैं इन्होंने taxation को ज़्यादा लगाया when compared to the counterparts for male products. So इसमें हम we can urge the government, many advocates are urging the government कि ये pink tax हटा देना चाहिए, because ये क्यों डिस्क्रिमिनेशन है? जस्ट बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव, तो आप जब यहाँ हमको कंसेशन नहीं दे रहे तो वहाँ भी इक्वालिटी रखें। तो ये एक डिबेट है जो चल रहा है, ऑनगोइंग डिबेट है, बट आई एम श्योर things will happen for the best. So this was all from my side. So I hope all the women assessees will gain a little more insight after watching this video, and they will know the direction ki where are my taxes going, and how I can claim little deductions to get the benefit out of it. तो आप अलग अलग ये देख सकते हैं deductions claim करने के लिए and to save your taxes. Also you can see making deposits in Sukanya Samriddhi scheme or senior citizens savings scheme to claim the most of it. तो इसमें girl child के लिए benefit है और ये सब government ने introduce किया था. So that was all from my side. I hope you liked my video. Please share this with your friends and other colleagues for if you like it, subscribe to my channel. I hope to see you again. Bye and have a nice day.